Hi friends, would you take a 500 rupee note and crumple it and throw it away? You won't, na? Then why do you waste opportunities to speak and not speak when you should be speaking? कितनी दफ़ा मैं देखता हूँ मीटिंग्स में कोई कुछ जैसे कोई मीटिंग में लोग बैठे होते हैं, कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा, कोई झिझक होती है। आई सी मैनी पीपल एक्सक्यूज मी और कोई उनको काट देता है या आई वुड लाइक टू से और कोई उनके ऊपर बात करता है एंड देन दिस पर्सन बिकम्स क्वाइट एंड देन दे डोंट से एनीथिंग। आई फील दीज आर wasted opportunities. Friends, if we feel shy to express ourselves in meetings, we will always be left behind. We will find ourselves catching up. We will find other people taking the credit because if you are not occupying a space, then somebody else will. Right? So, friends, today I want to talk about how to express ourselves in meetings, how to overcome that shyness or hesitation we feel when we are with a group of people, whether it is a professional meeting, whether it is a online meeting, whether it is a status update or a scrum or a daily stand up, even in our interpersonal lives. Many times in social occasions, मैं देखता हूँ कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ नए लोगों के साथ इंट्रोडक्शन होता है हमारा. We feel shy to tell people about ourselves. And friends, these are wasted opportunities. Every opportunity जो हम नहीं ले रहे अपने आप को express करने के लिए is a wasted opportunity. So friends, today I'm going to talk about 3 ways in which we can express ourselves better in meetings. Number 1, make a start. In the first 10% of the meeting, for example, supposing आपकी meeting 20 मिनट की है, in the first 2 minutes of the meeting, you should have said something. More on that later. Second, meetings are a contact sport, friends. In meetings, you have to touch and feel. You cannot wait for the ball to come to you. You need to go where the ball is. And number 3, how to start. If you don't know what to say, focus on something that went well and ask a question about it. If you are not sure which question to ask or how to speak और what to say या लोग क्या कहेंगे और या लोग मेरे ऊपर मजाक उड़ाएंगे, अगर ऐसी कभी फीलिंग्स आती हैं, ask questions. So friends, let me tell you about 3 hacks in a little bit more detail. Number 1, why should we speak up in meetings, friends? जैसे मैंने आपको पहले बताया, if you don't speak up, somebody else will. अगर आप वहां नहीं होंगे अपनी सीट पे तो कोई आपके सीट पे आके बैठ जाएगा. This is the way of the world, friends. This is the whether we like it or not. This is the way corporate works. And you know, we need to understand that meetings are not just called for the heck of it. एक जो मीटिंग होती है, it's the purpose of the meeting is to make you look good. अगर आप मीटिंग्स को इस नजरिए से अप्रोच करेंगे दैट इस मीटिंग में मैं अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकता हूं या बढ़ा सकती हूं डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, you will start looking at meetings differently. Friends, it's extremely important to speak up earlier on in the meeting. मैंने वो 10% फिगर आपको क्यों बताया? क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है वो मैक्सिमम होता है मीटिंग के शुरुआत में. जब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना तो सबका ध्यान बहुत ज्यादा हाई होता है. जैसे जैसे मीटिंग प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे हमारा ध्यान थोड़ा कम होने लगता है. किसी के फोन निकल आते हैं, somebody gets distracted, somebody gets a phone call, maybe you get called away, maybe your boss only is not there anymore in the meeting, in the middle of the meeting. So friends, at the beginning of the meeting, it is best to speak up, and if you don't know what to say, at least greet everybody. Call people by their name. Sometimes I see cameras are off, microphones are off. Even in physical one-to-one meetings in the office, people are sitting at the back, leaning back, hiding behind somebody, checking their phone under the table. Friends, that's not done. At the beginning of the meeting, when everybody gets together, that meet and greet, that small talk is very important, friends. Make use of it. क्योंकि उस time people are alert, people want to get to know you. थोड़ा सा
हंसी मजाक, थोड़ा सा मीट एंड ग्रीट होता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल टॉक जिसको हम कहते हैं ना, ये जो मीट एंड ग्रीट होता है, हम सोचते हैं कि ये टाइम वेस्ट है। कभी कभी हमको लगता है ये क्या बकवास है यार, काम की बात क्यों नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेक स्मॉल टॉक. That moment when you are with a client or a customer, or when you are with your boss or with your colleagues, this is the time to make that connection. That first 10-15% of the meeting, friends, is extremely important. उसको आप वेस्ट मत कीजिए. कभी कभी आप, जैसे कोई फोन कॉल होती है, आप पहले आ जाते हैं, आपका क्लाइंट बाद में आता है, राइट? तो आप क्लाइंट के साथ थोड़ी बात कर सकते हैं. यूटिलाइज दैट टाइम. सेकेंड, फ्रेंड्स, मीटिंग्स आर अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट का क्या मतलब होता है? अ स्पोर्ट वेयर टू पीपल और टू और मोर पीपल कम क्लोज टुगेदर एंड प्ले. ये दूर से खेलने वाला काम नहीं है. मीटिंग्स में हमको एक दूसरे के पास जाना है. इसका क्या मतलब है? फिजिकली पास नहीं, नॉट नेसेसरीली, बट यू हैव टू मेक एन अटेम्प्ट कि जहां कोई बात चल रही है, जहां कोई डिस्कशन हो रही है, वहां आपका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि एक मीटिंग में सिर्फ 2 लोग ही आपस में बात कर रहे हैं या 3 लोग कर रहे हैं आपस में बात, एंड आपको कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, कभी कभी हो सकता है, समटाइम्स यू डोंट नीड टू कंट्रीब्यूट, बट रिपीटेडली इफ इट इज हैपनिंग, अगर आपको लग रहा है कि कभी भी आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आपको कोई चांस ही नहीं मिलता बात करने का, देन फ्रेंड्स यू नीड टू वरी. सो फ्रेंड्स, मीटिंग्स आर अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. अगर हम हॉकी या फुटबॉल जैसे लें, अगर आपने हॉकी या फुटबॉल कभी देखा हो या खेला हो, आपको एक अच्छे प्लेयर को वहीं होना पड़ता है जहां बॉल होती है. यू नीड टू बी वेयर द बॉल इज. यू कैन नॉट बी स्टैंडिंग ऑन द वन साइड एंड वेटिंग फॉर द बॉल टू कम टू यू. द सेम थिंग इन अ मीटिंग एज वेल. पीपल आर नॉट गोइंग टू से, प्रशांत, व्हाई डोंट यू स्पीक नाउ? अगर कोई ऐसे बोले तो बहुत अच्छी बात है, बट डोंट वेट फॉर पीपल टू इन्वाइट यू. Right? The same way that you would be playing a contact sport like hockey or football, you need to make the effort to go towards where the action is, where the discussion is. Right, friends? तो ये बहुत important है. और तीसरा, फ्रेंड्स, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, that कभी कभी हमको लगता है कि मैं क्या बोलूं, how to start. मेरे अंदर जैसे दिल धड़क रहा होता है, कान गर्म हो रहे होते हैं, हाथ थोड़े से स्वेटी से हो रहे होते हैं, एंड आई फाइंड दैट देयर इज नॉट मच दैट आई कैन टॉक. मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है. ऐसी सिचुएशंस में फ्रेंड्स, व्हाट यू कैन डू इज, कोई ऐसी चीज जो अच्छी आपने की हो, या आपके प्रोजेक्ट कोई अच्छा गया हो, या आपने कोई माइलस्टोन रीच कर लिया हो, उसके बारे में आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप फीडबैक मांग सकते हो. सपोजिंग प्रशांत आपके मैनेजर हैं, सो आप पूछ सकते हो, सो प्रशांत, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर डिलीवरी इन द लास्ट वीक? आस्क फॉर फीडबैक. ये भी अपने आप में कंट्रीब्यूट करना है, ये भी अपने आप में कुछ बोलना है. नाउ यू आर नॉट जस्ट स्पीकिंग फॉर द हेक ऑफ इट. यू कम अक्रॉस एज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड, हु इज लुकिंग फॉर फीडबैक, एंड दैट, फ्रेंड्स, helps to create a very good impression. More importantly, friends, फॉर शाई पीपल, फॉर इंट्रोवर्टेड पीपल, अगर आपको कभी लगता है कि शुरुआत कैसे करनी है, किसी के साथ बात कैसे करनी है, आस्क अ क्वेश्चन. डोंट मेक अ स्टेटमेंट, आस्क अ क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछने से नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द अदर पर्सन टू टॉक. अब आप पे थोड़ा सा लोड और प्रेशर कम हो जाता है कि बात करने का जो टेंशन है थोड़ा सा कम हो जाता है. राइट फ्रेंड्स? सो अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, अपने आप को थोड़ा टेंशन कम कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो टेंशन बिल्डअप हो रहा है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किससे बात करूं, शुड आई से इट, शुड आई नॉट से इट, व्हाट, इफ यू एवर स्टार्ट फीलिंग दोज नेगेटिव थॉट्स, ask a question. You will find that load lifting. You will find yourself becoming more positive. You will want to speak. And that, friends, is the essence of visibility, recognition and growth. Shy log, introvert log, it's a personality trait, right? जो आपका नेचर है वो है, लेकिन don't let your personality determine your success. Even shy people, even introverted people can be really successful at meetings. So friends, this is what I've shared with you. Come back to me, share with me, and let me know what you thought about it. Look forward to meeting you again in my next video. Bye.